audible. Yes, Yeah, yes. I'm audible. Okay, okay. So, hi, how are you? Hello, yeah, I'm doing good. How are you? I'm good too. So, क्या प्रॉब्लम आ रही है आप बताएंगे थोड़ा सा? ये मैंने व्हाट्सएप पे भी डाला था कि आई एम फेसिंग इश्यूज डिलेज इन माय मैरिज हम्म. एंड ओवरऑल आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि क्यों डिले हो रहा है इतना व्हाट इज द टाइमलाइन व्हेन विल आई गेट मैरिड and Okay, also the traits of my life. But overall, questions related to marriage, and also I'm facing a lot of blockages in terms of my career as well. okay. So, मतलब overall हर जगह से blockages हो रहा है. So, and the main is the marriage part. I am not understanding. I'm not finding good profiles or anything. So, Okay, okay. So, please confirm the detail. आपके जुलाई 22 1992 10:23 AM फीमेल हाँ मुंबई. हाँ Okay. So, this is your chart दिव्या. एंड यहाँ पर अगर आप जनरली क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ. Marriages happen when the Jupiter transit from the seventh house of your chart. Okay. So generally this is your Lagna chart. As you can see here, can you see my cursor? yes, yes. Yeah. So this is your Lagna chart, and you can see here this your Lagna is Mercury. Okay. Mercury is the person whoever Virgo we generally call it. तो यहाँ पर क्या है जनरली बहुत अच्छा एक तरह से लग्न है for related to calculation of people. Generally this kind of people are very calculative in nature and they take calculated risk and that kind of thing उनकी personality होती है. अब यहाँ से जब आप घूम के आते हो तो you will see this is the house of your marriage and this is Okay, your seventh house. तो this is यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें 12 नंबर लिखा है. This is the राशि of Jupiter means Pisces. See? And the okay. Jupiter, sorry, Yeah, yeah, may I continue? yeah, yes, yes. सो एंड यू कैन सी हियर कि यहाँ पर जो पाइसिस राशि बनती है पाइसिस का स्वामी गुरु जाके 12th हाउस में बैठ गया. ठीक है. आई एम एक्सप्लेनिंग लिटिल बिट अबाउट द एस्ट्रोलॉजी एंड वेन एवर द प्लैनेट जिस हाउस से भी कनेक्टेड हो वो 6, 6, 8 एंड 12 हाउसेस में जाके बैठता है. सो दैट क्रिएट डिलेज एंड यू कैन सी ब्लॉकेज काइंड ऑफ अ थिंग. ठीक है. एक तो पहला कॉम्बिनेशन ये है कि 12th हाउस. एक चीज और है यहाँ पे क्लियर आउट हो गई है कि आपको जो लड़का मिलेगा it's not going to be from Mumbai. If you're born in Mumbai, वो मुंबई से बाहर मिलेगा. एटलीस्ट आप समझ लीजिए कि फॉरेन लैंड से भी कनेक्शन हो सकता है एंड यू विल फाइंड द प्रोफाइल मोस्टली आउटसाइड फ्रॉम द मुंबई. ठीक है. आपकी शादी मुंबई के बाहर ही होगी. जनरली आप समझ लीजिए मिनिमम 500 किलोमीटर की रेंज रहती है. बट वी कैन सी कि फॉरेन में भी टच अगर फॉरेन काइंड ऑफ अ गाय इज ऑल्सो यू विल गेट. First thing. And the delay generally come from when there is a aspect of Saturn on this house. As you can see here, your Saturn is in fifth house. Love के house में Saturn बैठा है, तो it is delaying in love also. Are you in any relationship or what? No, no, I'm not. You are not in relationship. You have No, any no. earlier relations or? Yes, I had 5 years back, Okay. but it didn't work out. It didn't work out. Okay. So generally Saturn की ये पोजीशन है. अगर यहाँ से हम गिनेंगे तो Saturn aspects third from his house and seventh from his house and 10th from his house. So if I am calculating this, so 1, 2, and 3, third is the house of your marriage is got stuck. Seventh house is the house of gain which got stuck, and the 10th house which is accumulated dhan is got stuck. So whenever Saturn sees this kind of aspects, these things got delayed. लाइक जनरली डीले होता है. इट डजेंट मीन कि ये एक तरह से वो हो गया कि आपकी होगी नहीं. इट्स अ Hmm. डिले. इट्स अ काइंड ऑफ यू कैन सी द डिले. सैटर्न जनरली जो प्रमोट करता है लाइक आपकी 92 बॉर्न हो ना तो यू आर लाइक ऑलमोस्ट 32 राइट 33 और Yeah, 32. 33, 33. या तो जनरली अब देखिए जो कुंडली में रूल्स आते हैं वो जनरली आते हैं कि आपकी मैरिज जनरली या तो महादशा से देखी जाती है या जुपिटर का ट्रांजिट देखा जाता है. ठीक है. तो जुपिटर का ट्रांजिट तो अभी यहाँ से नहीं है लेकिन लग्न से ट्रांजिट होगा. लेकिन लग्न से ट्रांजिट होने में भी 2.5 से 3 साल हैं. ठीक है. बट अगर हम देखेंगे कि जैसे सन की आपकी महादशा चल रही है. योर होल लाइफ इज रूल्ड बाय सन. as you can see here the mahadasha is going from 2000 almost you can say 23 till 2029. तो ये एक महादशा है और इसमें ये जो पीरियड आएगा सैटर्न का
तो ये अब शुरू होने वाला है 7वें, मतलब लाइक यू कैन सी फ्रॉम लास्ट 10 days इट्स गॉट एक्टिवेटेड सैटर्न पीरियड, एंड आई कैन सी इन योर केपी चार्ट ऑल्सो। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सैटर्न इज शोइंग 5, 6, 7, 11 विच इज मैरिज, एंड 2, 9, 11। So I can see that कि Saturn is generally giving you the marriage in your life. तो हम ये बोल सकते हैं कि ये 1 year में you can try it out and you will get married, but जुपिटर का ट्रांजिट नहीं है तो इतना अच्छा नहीं होगा, बट देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी चांस कि इस बीच में आपकी मैरिज हो जाए। 2025 7 मतलब ऑलमोस्ट समझ लो 2026 जून, जून के पहले आपका या तो रोका हो जाए या आपकी शादी हो जाए, इसकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हाँ हाँ हाँ। है ना? आई एम एक्सप्लेनिंग एक्चुअली जस्ट टू लाइक वी आर नॉट जस्ट गिविंग यू द रिकमेंडेशन। अगर मैं वो दूंगा तो आप शायद समझ नहीं पाएंगे मेरी बात। हम्म। तो जनरली जो कुंडली का जो जनरली देखा जाता है, मैं वो आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मून प्लेस्ड है, ठीक है। अगर मून का प्लेसमेंट आपके 7th हाउस में है तो यू आर वेरी सेंसिटिव अबाउट द टॉपिक रिलेटेड टू मैरिज, एंड लाइक इमोशनल ड्रिवन हो रहा है आपके लिए, है ना? बट अगर इसका हम कनेक्शन देखेंगे तो 4th से अगर हम गिनते हैं तो ये 9th हाउस आपका लाइफ में एक्टिव करेगा। तो जैसे ही आपकी शादी होती है तो यू कैन सी अ वेरी बिग चेंज इन योर लाइफ रिलेटेड टू योर लक। योर लक विल स्टार्ट वर्किंग इन योर फेवर, क्योंकि ये लक को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। ऑल्सो मून की ये प्लेसमेंट ये बताती है कि यू विल गेट अ पार्टनर विच इज गोइंग टू बी फेयर लुकिंग एंड ऑल्सो इमोशनल, एंड ऑल्सो यहाँ पर पाइसिस राशि बनती है जिसके स्वामी गुरु बनते हैं, तो इट मस्ट बी गोइंग टू बी अ स्पिरिचुअल गाय। स्पिरिचुअल डजंट मीन कि वो कोई ये स्पिरिचुअलिटी में हो भी सकता है, स्पिरिचुअलिटी में हो, बट जनरली जो पर्सन हु इज मोस्टली ड्रिवन टुवर्ड्स यू कैन से लाइक जो क्लब जाने की बजाय मंदिर जाने वाले जो लोग होते हैं ना, तो उस टाइप का यू विल फाइंड अ गाय। एंड ऑल्सो जहाँ तक मुझे लगता है कि आप अगर पार्टनर जो सर्च कर रहे हैं, अगर आप लोकली यहाँ पर अगर आप सर्च कर रहे हैं तो आई थिंक कि आप थोड़ा गलत कर रहे हैं। यू शुड लुक फॉर अ गाय आउटसाइड मुंबई और मे बी इन फॉरेन लैंड, यू विल इजीली गेट द गाय। क्योंकि यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज बनती है, यहाँ कर अगर हम देखेंगे तो सैटर्न इज गिविंग द मैरिज। मून यू कैन सी 7, 11 इज द गेन एंड 7th इज द हाउस ऑफ मैरिज। तो यहाँ पर गेन होगा शादी का, ये पीरियड के बीच में कुछ ना कुछ समथिंग इज गोइंग टू गुड हैपन टू यू, क्योंकि ये नक्षत्र लॉर्ड लेवल पे सब लॉर्ड लेवल पे नहीं है, बट स्टिल आई विल सी कि आपको बहुत अच्छा एक इस बीच में अगर गाय मिल जाए, इस बीच में आपको कोई भी जो बोलते हैं ना आपका लाइक लाइफ पार्टनर मिल जाए तो वो बहुत ज्यादा चांसेस है उसके। उसके बाद का एक पीरियड और आएगा लेकिन उसमें अभी थोड़ा टाइम है, दैट विल बी अराउंड 2027 9 when the Venus got activated and Venus is the natural significator of marriage। बट मेरे को लगता है कि आप सैटर्न में यू विल फाइंड द गाय। बट यही है, आप थोड़ा सा जो अगर लड़के आप आपके नेटिव प्लेस के आसपास ढूंढ रहे हैं तो शायद वो फ्रूटफुल नहीं है। एटलीस्ट लुक फॉर अ गाय मिनिमम 300 to 500 किलोमीटर फ्रॉम योर होम टाउन। यू वर बॉर्न इन मुंबई, राइट? यस। तो मुंबई से थोड़ा सा आसपास का जो भी एरिया होता है या फॉरेन लैंड होती है, वहां से रिलेटेड आपके जो है लड़के जो भी है, जो भी आपका हस्बैंड होंगे, वो ज्यादातर मोस्ट प्रोबेबली वो वहां से होंगे। और आई कैन ऑल्सो सी ऑन नवामसा चार्ट दैट योर मैरिड लाइफ इज गोइंग टू बी गुड, बट थोड़ा सा एक हल्का सा एंगल ये रहेगा, अगर राहु की प्लेसमेंट हम देखें तो 4th हाउस में आपकी माता पिता की सेवा के भी आपके योग कम दिखते हैं। यू विल आप मम्मी पापा के साथ रहेंगे या मम्मी पापा से दूर रहेंगे, उसके चांसेस ज्यादा। वैसे फीमेल की चार्ट में देखने का ज्यादा बनता नहीं है, बट फिर भी मैं एक जनरल वे में बता रहा हूँ। सो या तो अभी आप कहाँ, आप अकेले रह रहे हैं या क्या अपने फैमिली के साथ हैं? नहीं नहीं, मैं अकेली रहती हूँ, आपने सही बोला है। है ना? तो हाँ हाँ। लाइक इट जनरली हैपन व्हेन राहु केतु प्लेस्ड इन योर जनरली द एक्सिस व्हिच वी डिनोट हियर, यू कैन सी हियर कि यहाँ पर राहु 4th हाउस को ग्रैब कर रहा है। 4th हाउस इज द हाउस ऑफ योर मदर, हाँ। एंड मदर के हाउस में राहु आ रहा है, ठीक है, एंड केतु आ रहा है इज इन द 10th हाउस। सो जनरली पीपल कीप ऑन, जहां पर भी केतु बैठता है वहां से आपको डिटैच धीरे धीरे फील कराएगा। एंड डिटैचमेंट डजंट मीन कि वहां का आपका एक्सपीरियंस इतना अच्छा बेहतर नहीं होता लाइफ में। धीरे धीरे ऐसे लोग उस हाउस से रिलेटेड डिले डिले क्या सॉरी उस हाउस से रिलेटेड थोड़ा सा आप डिटैच फील करते हैं, ठीक है। तो ये एक जनरल सिनेरियो है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो धीरे धीरे आपका करियर के प्रति इतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा,
ना मान सम्मान का आपको ऐसा मोह जो होता है ना, जो प्रेस्टीज को लेके लोग हुँ। बहुत सेंसिटिव होते हैं, वैसा आप फील नहीं करेंगे, थोड़े टाइम बाद अभी करते होंगे। तो जनरली हाँ, मैं कहाँ पर था? सी, तो यहाँ पर ठीक है, एंड द ब्लॉकेजेस जो आप अदर पार्ट ऑफ द लाइफ का बोल रहे हैं, तो सैटर्न से अगर हम जनरली गिनते हैं, तो यहाँ से हम गिनेंगे तो सैटर्न जनरली क्रिएट्स द ब्लॉकेज। यहाँ पर हम देखेंगे तो सैटर्न इज इन फिफ्थ हाउस इज ऑफ लव एंड रोमांस, ठीक है? तो पहले तो वहाँ पर स्टक, वहाँ से हम 3 हाउस आगे गिनते हैं, 1, 2 एंड 3, दिस इज मैरिज, यहाँ पर स्टक। यहाँ से हम गिनते हैं 7th हाउस, तो यहाँ पर गिनेंगे तो 3 हो गए, 4, 5, 6, 7, 7th हाउस इज द हाउस ऑफ योर गेन, ठीक है? तो गेन को रोकना, गेन मीन्स, गेन डजंट मीन कि गेन आपका मैरिज में ही हो, गेन इन योर लाइफ, अदर पार्ट ऑफ योर लाइफ ऑल्सो। बट ओवरऑल व्हाट आई सी इन योर चार्ट, यू कैन सी हियर, देख यहाँ पर 100 के ऊपर जिसकी भी स्ट्रेंथ होती है वो बहुत अच्छे होते हैं प्लैनेट्स। तो मेरे को आपके चार्ट में जो देख के लगा कि लाइक एक मून ही है थोड़ा सा, जो थोड़ा सा इनस्टेबल काइंड ऑफ अ पोजीशन है, अदर अदर प्लैनेट्स आर इन गुड पोजीशन। आई विल से योर लाइफ विल बी वेरी गुड। एंड यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट हाउस इज वेरी गुड, एक्शन टेकन काइंड ऑफ अ थिंग। Second house is little neutral, so you will face issues related to your, you can see savings नहीं हो पा रही, ठीक है? एक्यूमुलेटेड धन की जो बात होती है, वो धन नहीं जो आपकी इनकम आ रही है, एक्यूमुलेशन, धन का एक्यूमुलेशन जो है उसमें आपको फेस होगा थोड़ा सा इश्यूज, या न्यूट्रलिटी काइंड ऑफ होगी। थर्ड हाउस इज गुड, सो दिस इज गुड। फोर्थ हाउस यू विल गेट इन योर लाइफ ऑल काइंड ऑफ, यू कैन से कार, गाड़ी घोड़े एंड आधुनिक जो भी आज की सुख सुविधाएं हैं वो सारी आपको मिलेगी। फिफ्थ हाउस इज वीक, दैट मीन्स इसका मतलब यही है कि लव रोमांस में आपका वो वीकनेस, या आपको वो चीजें नहीं इतनी इजीली मिल पा रही। सिक्स्थ हाउस इज न्यूट्रल, सेवंथ हाउस इज वेरी गुड एंड इट्स गोइंग टू गिव यू गुड रिजल्ट। सो ये बिजनेस का भी हाउस है और ये आपकी मैरिज का है, एंड यू कैन सी इट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल हाउस इन योर चार्ट। सो मेरे को ऐसा लगता है कि शादी के बाद यू विल ऑल्सो फाइंड अ इन लॉ विच आर रिच। यू विल क्योंकि एट्थ हाउस आपका बहुत पीक कर रहा है, तो यू विल फाइंड अ गाय, यू नो, काइंड ऑफ अ रिच फैमिली। एम आई एलिबरेटिंग मोर, और मेरे को डिटेल करूँ कि नहीं करूँ, आप बताइए। नहीं, नहीं आप करिए, एक्सप्लेन या करिए। एम एक्चुअली आई एक्सप्लेन वेरी, यू नो, बहुत ज्यादा मैं घुस जाता हूँ, तो अब मुझे नहीं, बता नहीं दीजिए। चलेगा, चलेगा। नहीं, मेरे लिए अच्छा है। मैं बहुत मुझे बहुत कम लोगों पे ऐसे ओके, कुंडली रीडिंग करा देती हूँ, तो मेरे लिए बहुत कुछ नया भी है सीखने के लिए, और ओके, मुझे अच्छा लग रहा है ऐसे जानने ठीक के है, लिए। ठीक है। तो सेवंथ हाउस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल हाउस इन योर चार्ट। ऑल्दो इट्स गोइंग डिलेड, डिलेड का सिर्फ एक ही रीजन है, सैटर्न, सैटर्न एंड राहु दोनों की प्लेसमेंट आपकी सेवंथ हाउस में, बट इट्स अ डिले, इट्स नॉट डिनायल, ठीक है? यू नीड टू हैव पेशेंस, ठीक है? अगर यहाँ पर इस ट्रांजिट में भी नहीं होता तो और आपकी शादी जब भी हो, वैसे तो सैटर्न में हो जानी चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, बट अगर फिर भी अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो वेन एवर यू विल फाइंड, यू विल, कैरियर वाइज देखिए आप, 10th हाउस इज वेरी गुड, so you will have a very good career. 11th house again going to stuck, it's a house of your desire, see, and desire की fulfillment में आपको बहुत effort लगेंगे, like whatever your desire is in your mind, you have to work hard for that. 12th house is good, and it's good, that means the chances to go in foreign and living there are very high. सो जो मेरे को जनरल सिनेरियो में जो आपकी कुंडली देख के लगा कि यू में फेस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मनी, but not unearned money. 8,000 is out of so you will find a, see, there's a chance, high probability that your in-laws will be rich, or your you can see सारी जो होता है ना, husband will be rich, kind of that you will find this thing. And fourth house is strong, तो आपको सारे सुख मिलेंगे जीवन के, and सुख का मतलब होता है एक्सट्रीम सुख, ठीक है? तो सारी चीजें आपको मिलेगी। इट इज हैविंग एनीथिंग अबव 7.5, वी विल कंसिडर इट एज अ गुड इन योर चार्ट। 7.5 or even 7 also is good. So we can see fifth house is neutral and sixth house is neutral. Otherwise, all the planets are giving a good result. And next, we will shift to the KP chart. And on KP, the Saturn is promoting 7-11. So in this period, if you start a business, also it's going to be very good period to start a business. You will gain. That's not an issue. And I can see the Rahu, generally you can see here the Ketu placement. Rahu is giving you on nakshatra level very good result. This is also your career related to 1, 10, 11. What work you do? Uh, I work in a bank, but okay, the thing is, I'm working so hard, but my promotions are like delayed, or there are some more changes, which sudden changes which happens, okay. organizational changes happen, or team get shifts, projects get So shifts.
So my work is like, again I start with at zero. So that is also the thing which I face in my life. Okay, but what I'm going to tell you is that if you keep on doing the things and if you keep patience, you will gain massively, because when Saturn start to give you things, आपकी 30 32 31 शादी तक वो चीजें रोक सकता है, उसके बाद नहीं रोक सकता. सैटर्न इज द प्लैनेट ऑफ वृद्धा अवस्था. तो वृद्धा अवस्था का ये मतलब नहीं आज के जमाने में वृद्धा अवस्था क्या है, आदमी जीता ही कितना है. तो इफ यू कैन कंसिडर इट 70 80 इज व्हाट द एज, तो अगर उससे भी गिनेंगे तो आपको 35 33 इज ऑलरेडी 2 3 साल और मैक्सिमम. Saturn will release all these houses and the gain houses will be released, and the accumulated houses will also be, you know, accumulation, the wealth accumulation house will also be released from Saturn's malefic impact. So what I am thinking कि आपको अच्छे गेन मिलेंगे, and what whenever the 11 connects with any house in KP it creates a massive results. तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आपको नक्षत्र लेवल पे 1 10 11 इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन. 11 12 यू कैन सी हियर ऑन मार्स लेवल. सी एंड ऑल्सो व्हाट आई कैन सी हियर, वीनस जो शादी हो रही है या जुपिटर जो है शादी करवा रहा है, इट इज गिविंग अ 12th हाउस एक्टिवेशन विच इज फॉरेन लैंड. सो व्हाट आई एम सीइंग हियर कि मे बी यू फाइंड यू कैन सी हियर 7 12 बोथ आर एक्टिव हियर. तो वीनस की दशा में भी अगर शादी होगी तो मे बी देयर इज अ चांस कि आप फॉरेन में जाएं या फॉरेन में रहें या फॉरेन का ही आपको पार्टनर मिल जाए. There's a high probability chance. So this is what I think, and also I will share some remedies with you. You will receive it on your WhatsApp within 24 hours, which I will, जनरली मैं आपको जो रेमेडीज प्रिफर करूंगा. अगर हम एस्पेक्ट लेवल पे भी जाते हैं कि लाइफ में आपको कौन सी चीज में एस्पेक्ट जो है आपका अच्छा नहीं मिल रहा है, सो आप 7th हाउस अगर आप देखेंगे विच इज ऑफ मैरिज, 7th हाउस ऑफ मैरिज इज हैविंग अ वेरी गुड स्ट्रेंथ. लाइक अगर हम यहाँ देखेंगे तो जुपिटर इज गिविंग, एज यू कैन सी जुपिटर इज गिविंग 89% न्यूट्रल और काइंड ऑफ स्वग्रही दृष्टि ऑन इट, एंड इट्स गुड. व्हाट इज कौन सा प्लैनेट है जो आपको यहाँ पे दिक्कत दे रहा है 7th हाउस में? अगर आप देखेंगे राहु जो है 7th हाउस पे 71% नेगेटिव दृष्टि दे रहा है. एंड राहु जनरली सडन चीजों का कारक होता है. तो सडनली रिश्ता आते आते कैंसिल हो जाना, प्रोफाइल्स वैसी नहीं मिल पाना, दैट काइंड ऑफ थिंग इट इज हैपनिंग इन योर चार्ट. सैटर्न की दृष्टि देखेंगे 34% नेगेटिव. सो दीज आर द टू प्लैनेट्स विच इज जनरली causing the delay and pain to your marriage related problems. So अगर हम इनकी रेमेडीज करेंगे सो दैट्स हाई प्रोबेबिलिटी चांस कि यहाँ पर आपको थोड़ा रिलीफ मिले और यू विल गेट मैरिड. तो दो Okay. चांस है, दो चांस मुझे लगते हैं जनरली. एक तो सैटर्न की महादशा, इसमें जो ये एक्टिव होगा तो यहाँ पर भी बहुत अच्छे चांस बनते हैं, जो कि एक्टिव होने वाला है कुछ टाइम में. आई कैन सी, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल. जैसे सन की महादशा चल रही है, इसमें आई कैन सी कि ये सैटर्न है. ठीक है, सैटर्न की अभी एक्टिव हुई है 10 दिन पहले. ये चलेगी आराम से 2026 के छठे ऑलमोस्ट एक जून जुलाई तक. तो मोस्ट प्रोबेबली इस पीरियड में अगर कुछ हो जाए तो बेस्ट है. अदरवाइज जो ट्रांजिट होगा तो ट्रांजिट में तो 2 2.5 साल 3 साल मिनिमम हो सकते हैं. ट्रांजिट देखिए या तो 7th से हो जाए या लग्न से हो जाए, दोनों ही केस में हमारा काम हो जाता है. लग्न से भी होता है तो हम उस केस में बोल सकते हैं कि मैरिज इज श्योरली गोइंग टू हैपन. और अभी ऐसा बोलूंगा मैं कि सैटर्न है तो थोड़ा ऊपर नीचे है, बट फिर भी स्टिल आई थिंक यू विल गेट मैरिड, एंड द गाय यू आर गोइंग टू गेट इज गोइंग टू बी गुड, वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ लाइक क्रूअल नहीं होगा. Mm. अच्छा होगा. तो यू विल फाइंड अ गुड गाय एंड योर लक इज आल्सो गोइंग टू वर्क इन योर फेवर सूनर. And will it be like an arranged marriage or सी love marriage? Because right now I'm trying in all the matrimonial site from past 3 years, and I'm not getting any profiles, or my career, something happens like profile अगर बाहर का मिलेगा तो career wise also, because I have loans, I have home loans to pay. So for that also I was looking कि okay इधर का ही होगा तो it is beneficial, because living everything and going there, because uh, it is a good job. So मतलब ओके. अरेंज होगा, लव होगा, हाउ विल आई मीट, दैट इज आल्सो द थिंग व्हिच आई वांटेड लव टू आस्क. मैरिज के लिए, अगर सैटर्न पीरियड में होगा तो लव मैरिज के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे, क्योंकि सैटर्न इज प्लेस्ड इन 5th हाउस. 5th हाउस इज द हाउस ऑफ लव. एंड यहाँ से हम थर्ड दृष्टि जो मैंने आपको गिनवाई है अभी दिखाएगी हम्म. 34 50%, देयर इज अ चांस. ठीक है, बट मैं यूं नहीं बोलूंगा क्योंकि सैटर्न जनरली डू नॉट प्रमोट दिस थिंग्स. बट फिर भी ये हम्म. है कि चांस तो है, आप ट्राई कीजिए. बट मोस्ट प्रोबेबली व्हाट आई थिंक इज कि
जुपिटर की बहुत अच्छा एस्पेक्ट है, तो यू विल गेट मैरिड। एंड लोन्स वगैरह जो आप बोल रहे हो ना, बट वो देखिए वो थोड़ा सा ऐसा है कि मे बी यू विल फाइंड अ गाय बहुत अच्छा, आपने आपको लड़का या जो भी इस टाइप का मिल गया जो ये सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। एंड लोन्स वगैरह आर नॉट द बिग इशू इफ योर लाइफ इज टोटली चेंजिंग इन द फॉरेन लैंड। हाउ डज द लोन Mhm. And I mean, the chances of getting married within community is more, or will more it be more outside community, good within good community? good chances because of Jupiter and Moon. Good chances. Okay, okay. Yeah. And one more, the main question which I had, and main, thing is like I'm already 33 and my biological clock is also clicking. Okay. So I Okay. just wanted to understand, like, if I get married within a year, if I'm being very positive about that. Hmm. So the chances of conceive, like, are there any issues after marriage, or, Baby those related. things? Yeah, related to Okay. conceive and What everything. I can see in your chart that Saturn is in fifth house, which is the natural care significator of delay. So fifth Okay. house is your first child. So I think you may have to face some issues, or you may have to wait a lot. So you need to do the remedies related to this house to remove this, karmic imbalance in your life. Mm-hmm. So, And yeah, you okay. continue. And is there any dosha? Because someone told me I have pitru dosha and Mm, something, mm. and Uh, there were puja I some. will, in Yeah. Kundalini, there are millions of doshas. See, Okay. but क्या अगर आप मुकेश अंबानी की कुंडली देखेंगे उसमें भी वो आपको दोष मिल जाएगा. So this is Okay. not the main issue. The main problem is that what the transit is going to happen. अगर ट्रांजिट सही हो रहा है और आपकी दशा बोल रही है तो दोषा वोषा सब बाद में आएंगे. ठीक है. Okay. दोषा Okay. आपके अगर दोषा होंगे भी, मान लो पित्त दोषा वैसे तो कुछ दिखता नहीं एकदम से, बट फिर भी अगर ये दोष है, मांगलिक भी नहीं हो आप, मंगल भी आपका जो है 9th हाउस में चले गया, विच इज इंक्रीजिंग योर एज. ठीक है. तो आपको, मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ खास ऐसा दोष आप बनता ही नहीं है. ठीक है. गुरु चांडाल दोष जनरली बनता है जब जुपिटर और राहु कंजंक्ट होते हैं, वो भी नहीं दिख रहा. अंगारक दोष मंगल राहु के कॉम्बिनेशन, वो भी नहीं दिख रहा. तो अब छोटा मोटा अगर कुछ होगा भी तो हाउ डज इट मैटर. इट्स नॉट गोइंग टू डिले. अगर देखिए ये बोलते हैं ना, जीवन मरण और परण ये लिखे हुए हैं. Mm-hmm. तो परण मतलब फेरे, फेरे की रात नहीं टलती, चाहे कितने दोष हो. Mm-hmm. तो मेरे को नहीं लगता है कि उससे रिलेटेड, या यू कैन डू सम रेमेडीज रिलेटेड टू सैटर्न, ताकि आपका चाइल्ड जो रिलेटेड थोड़ा बहुत इशू आएगा. वैसे तो नहीं आना चाहिए क्योंकि सैटर्न खुद स्वग्रही होके बैठा है. ठीक है. और अभी मेरा 7.5 भी चल रहा है गेस कुछ इसमें. नहीं चल रहा है साढ़े साथी हम्म, आपका. नहीं साढ़े चल सात रहा है. साढ़े साथी जो है जनरली दो तरीके से चलता है, वो भी बता देता हूँ आपको. साढ़े साथी एक होता है चंद्रमा पे चल रहा है, जो मून से रिलेटेड जो है. मून पे अगर सैटर्न घूमता है तो मून आपका पाइसिस राशि में, तो राशि पे चलता है या लग्न पे चलता है. तो सैटर्न अगर यहाँ पर बैठा होता अभी, ठीक है, अगर हम देखें सैटर्न अगर ट्रांजिट यहाँ से कर रहा होगा तो आपको साढ़े सात ये यहाँ से कर रहा होगा, यहाँ से कर रहा होगा. अब हम 2 मिनट में ट्रांजिट देख लेते हैं. अगर चल रहा होगा तो हो रही होगी, बट साढ़े साथी से भी आपको कोई फर्क मेरे को नहीं लगता मेजर पड़ेगा. एक से हम्म. सैटर्न जो है आप देखेंगे जो बाहर का चार्ट है, इट इज शोइंग, इट इज मूविंग टू योर, like you can say, seventh house of marriage. So it's not moving from the lagna, so you are not facing any साढ़े साथी right now. ओके. लग्न पे जो साढ़े साथी होती वो जनरली क्रिएट्स दैट क्रिएट इश्यूज. बट जनरली यहाँ से मूव कर रहा है अभी साढ़े साथी में, बहुत टाइम है आपको, मतलब ढाई 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 10-15 साल. तो इट्स अ लॉन्ग. ओके. यस. ओके, बिकॉज आई थिंक मैंने पीछे, मतलब मेरे डैडी ने किसी से मतलब दिखाया था, तभी उन्होंने बोला कि 7.5 चल रही है, 22 से स्टार्ट हुआ था समथिंग ही टोल्ड, सो वो दैट्स व्हाई. एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, शायद साथ ही ऐसा नहीं होता है कि सालन 7.5 साल चलते हैं. उसमें ऐसा हम्म. होता है कि बीच में 2 साल चला, फिर 6 महीने का रिलैक्सेशन है, फिर 1 महीने चला, तो वो बीच में कुछ छोटा मोटा चल रहा होगा. बट देखिए ये कोई मेजर वो चीजें नहीं है, और उससे आपको दिक्कत नहीं आएगी. अगर गुरु का ट्रांजिट यहाँ हुआ तो आपकी शादी होके ही रहेगी. उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कोई किसी भी तरीके की, आप रेमेडीज थोड़ी बहुत करते रहिए. अगर सैटर्न से रिलेटेड रेमेडी करेंगे, सैटर्न आपका फिफ्थ हाउस का स्वामी है.
वो स्वग्रह ही होके बैठा है, तो एक तरह से ये बहुत अच्छा ही हुआ ना, लाइक इसमें प्रॉब्लम हम्म बस ये है कि 5th हाउस से रिलेटेड आपके रिलेशनशिप्स में बहुत टाइम लगा, आपको बहुत हम्म टाइम लगा रिलेटेड टू फाइंडिंग द गाय, उसके बाद मिला भी तो उतना अच्छा नहीं हो पाया या इट डिडंट वर्क आउट, तो 5th हाउस से रिलेटेड आपको दिक्कतें हैं, और 5th हाउस इज द हाउस ऑफ लव एंड रोमांस, एंड जो भी हम्म। वो मैरिज पे और यहाँ पर है। तो ऐसा नहीं है शादी को कोई डिनायल है, मैं ये अभी भी बोल रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा तो वेट करना पड़ सकता है, बट ये है कि सैटर्न जनरली अगर केपी में एक्टिव होगा और 7-11 एक्टिव होगा विच इज द हाउस ऑफ मैरिज, तो आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। एंड इट इज ऑलरेडी एक्टिव आपने बोला It ना, is मतलब। already active for ओके। like you can say 7-8 months. So keep searching for the right guy. Or obviously you will get the right guy क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है. But हाँ मैरिज लाइफ जनरली जैसे सैटर्न जो नवांशा चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर सैटर्न जो है 7th हाउस में आ गया है. 7th हाउस में जनरली आता है तो थोड़ा बहुत ये हल्के फुल्के कॉन्फ्लिक्ट वगैरह, या आप समझ लो कि आपकी नहीं सुन रहा है सामने वाला थोड़ा बहुत, तो दिस विल हम्म। हैपन, बट इट्स नॉट अ बिग डील. ओवरऑल योर ओके लाइफ लुक्स गुड टू मी. ओके। One last question I had. Yeah, sure. Yes. Somebody also told me about Mars as Darakarka. So they Sorry? told me that Mars as Darakarka, Okay. मतलब मेरा दारकारका was is Mars, ऐसा उन्होंने बोला, and maybe somebody who is violent or ऐसे ऐसा ऐसा पार्टनर मिलेगा. So I wanted नहीं to confirm that also. नहीं मिलेगा. Mm, okay. नहीं मिलेगा आपको कोई ऐसा वाइल्ड पार्टनर, तो अच्छा पार्टनर मिलेगा. वायलेंट डजंट कम, वायलेंट का मतलब ये नहीं है कि लिटिल बिट शॉर्ट टेम्पर्ड. आप मेरे को 36 के 36 गुण मिल रहे हो ना, उनकी कुंडली में भी झगड़े होते हैं. हम्म। तो क्या मतलब, मतलब ये सब चीजों का मैटर ही क्या करता है, मेरे को तो समझ नहीं आता, ये इतनी इतनी सी बारीक चीजें देख के करोगे क्या. हम्म। तो व्हाट आई नीड टू सी इज, हाँ अगर आप मांगलिक ही होते हैं और आप नॉन मांगलिक से शादी कर रहे हो, और उस बीच में भी अगर ऐसा भी नहीं, उसमें भी शादी हो जाती है, लेकिन अगर मंगल जिस हाउस में अगर उसका स्वामी केंद्र में नहीं आ रहा है, तो मंगल दोष कैंसिल भी नहीं हो रहा है, तो वी आई कैन सी सम मेजर इश्यूज इन योर लाइफ. बट अगर आपका मंगल खुद का इतना वो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं. यू आर लाइक आपका ब्रेन बहुत अच्छा है. You are having a Mercury in 11th house of game. Your Lagna is there, so already your Lagna. You are having to have a good age and everything. आपकी बढ़िया है, क्या दिक्कत है. Okay, okay. सो आई एक्सप्लेन एवरीथिंग एंड हम्म। तो रेमेडीज आपको 24 आवर्स में मिल जाएगी. फिर भी अगर आपको कुछ भी अगर डाउट आउट लगे तो यू कैन कंसल्ट इट ऑन लाइक व्हाट्सएप आल्सो, दैट्स नॉट Yeah, sure, I'll do प्रॉब्लम. that. कैसा लगा सेशन वगैरह, ठीक है. बहुत अच्छा लगा. मैं फर्स्ट टाइम ऐसे सेशन देख रही हूँ जहाँ पे प्रॉपर हॉरोस्कोप का पूरा रीडिंग बताया. यस. बिकॉज 2-3 बार पहले कराया था व्हेन आई वाज सर्चिंग फॉर मेनली फॉर द मैरिज, बट मुझे इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन मिला ही नहीं अबाउट व्हाई इट इज हैपनिंग एंड एवरीथिंग. बट ये सेशन में मुझे बहुत कुछ जानने मिला एंड इट वाज वेरी फ्रूटफुल. थैंक यू सो मच. तो आप कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं. अभी आप देखिए नेक्स्ट 6-7 महीने में आप कोशिश करिए सैटर्न की दशा में आप फिफ्थ लव मैरिज अरेंज मैरिज जो भी लगे सब ट्राई कीजिए. मे बी बस एक ही मैं चीज बोलूंगा, आप मुंबई के बाहर ट्राई कीजिए. मुंबई में लड़का मिलना आपको मुश्किल ओके. है ना. सो ट्राई हम्म। द गाय. फॉरेन लैंड वालों को मैसेज करो. बढ़िया चलेगा, क्या दिक्कत है ना.